9 we'll focus on the new chapter, that is water, and I have written few things about water. But before that, we'll see that the formula for water is H2O. We are starting from page number 35. So over here in a course, that water is being considered as a universal solvent. Why you call water as a universal solvent? You should know that water has the ability to dissolve large number of substances in them. They can be salts, they can be sugar salts. It's not only the common salt which you are using, it can be any salt. You have discussed many salts like copper sulfate is there, potassium nitrate is there, sodium nitrate is there, so there are plenty of salts that can be. I have given only few, but you can dissolve any of the salts. It also dissolve large number of gases also, like जैसे ammonia is there, you have hydrogen chloride is there. Okay, so these are the gases. etc I am writing means other gases also. So means water has a tendency, it's not only it can dissolve the solid part, but it can also dissolve the gases also. So water has the अंदर क्या भरा हुआ है, what is being filled over here, water. तो water has a tendency to dissolve the solids as well as solid substances, मतलब large number of substances and even the gases. That's why it is considered as a universal solvent. It's very important कि this thing is been there. Now in class 9th or 8th, you must even in 8th also, in 7th also, you have seen certain terms like solvent, you have solute, and you have solution. These terms you have seen. Now what is the solvent part? ये जो water आपने देखा था ना, जिसमें liquid जो पोर्शन था जो आपका था, वो बेसिकली आपका इट एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, और जो सॉलिड पोर्शन आपने डाला था दैट वाज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट. राइट, लेट्स फोकस ऑन इट. तो जैसे सपोज करो कंटेनर है, आपने इसमें क्या करा, वाटर डाल दी. वाटर बेसिकली क्या था आपका, सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा था, वो एक लिक्विड पार्ट था. ज़रूरी नहीं है एवरी टाइम वाटर इज भी, क्योंकि वाटर का चैप्टर पढ़ रहा है तो सॉल्वेंट हमारा वाटर ही रहेगा. बट इफ़ यू गो फर्दर हायर स्टडीज़ देन सॉल्वेंट्स आर चेंजिंग. और उसमें जो आप सॉलिड पार्ट डाल रहे थे जो कि आपका सॉल्यूट था विच यू आर एडिंग टू इट. ठीक है, ये पानी था, उसमें आपने सॉल्यूट डाला रखा था जो भी आपका सॉल्यूट पार्ट है. सो बेसिकली व्हाट डज दिस सॉल्वेंट मीन्स? Solvent is the medium in which you are adding a solute to it, and this particular solute dissolved in that medium, that is the solvent. And solute is the substance that dissolve or disappear in the solvent, and it forms the solution. Basically when these two combines together, the solute and solvent, they leads to give you a new term, that is your solution. तो आपने सपोज़ ये एग्जाम्पल, इसमें आपने NaCl, जो घर में आप नमक यूज़ करते हैं, आपने वो लिया, पानी में आपने घोला. ठीक है, तो आपने जो नमक लिया था दैट इज़ योर सॉलिड पार्ट, एंड वाटर विच यू हैव यूज दैट इज़ द सॉलिड पार्ट. एंड एट द एंड व्हेन यू मिक्स बोथ दीज थिंग्स, तो एक सोल्यूशन निकल के आता है जो कि आपका, आपने पढ़ा होगा, क्या आप बोलते थे, सॉल्ट सोल्यूशन. ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और चेंज कर सकते थे. यू कैन टेक दिस थिंग ऑल्सो, योर शुगर एंड वाटर. So that is also a case of your sugar and water. So that is again give you a sugar solution. तो आपके पास क्या हुआ, एक शुगर सोल्यूशन आ जाएगा. उसमें आपने क्या लिया, शुगर एंड वाटर. So water is a solvent, sugar is a solute. So I think part is clear to you that what is solute and what is solvent and what leads to the solution. In your books definition are given to you. I am showing that. You can see the solvent definition, you can see the solute definition, this is your solution definition. Now there is a more term arises, dilute solution. Now in this the amount of solute is small comparison to amount of solvent. तो जैसे सपोज वी आर मेकिंग अ डाइल्यूट सोल्यूशन, आपने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में आपने क्या करा, सॉल्यूट का पोर्शन क्या है, कम, अमाउंट क्या है, कम रखा है, और सॉल्वेंट का पोर्शन या अमाउंट जो है आपने ज़्यादा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसका ज़्यादा रखा हुआ है आपने, और इधर आपने सॉल्यूट कम लिया है और सॉल्वेंट का अमाउंट जो है आपका ज़्यादा है. तो वो जो सोल्यूशन बन के आएगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास लिया और सपोज़ करो उसमें 100 ml वाटर है, और अब उसमें आपने सपोज़ करो सिर्फ 10 ग्राम्स NaCl डाल दिया. एक ये सोल्यूशन है, और एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आपने 100 ml वाटर लिया है और उसमें आपने 50 ग्राम्स NaCl बताइए. अब बताइए इन दोनों में से डाइल्यूट सोल्यूशन कौन है, किसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है.
तो ये वाला, ये ए है, सपोज करो ये बी है, तो आप मुझे तुरंत बता देंगे मैम ए इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, ये आप मुझे तुरंत बता दोगे दिस इज़ द डाइल्यूट सोल्यूशन मैम, बिकॉज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ लेस कंपैरिजन टू बी पार्ट, इन बी देयर इज़ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सो आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट, डाइल्यूट सोल्यूशन? नाउ वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ये उल्टा हो जाए, मीन्स अ सोल्यूशन विच विल हैव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. आपने कंटेनर लिया है तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या है, कम है. दिस इज सॉल्यूट. सो व्हाट इज़ मोर इन दिस, सॉल्यूट विल बी मोर एंड सॉल्वेंट विल बी कम. अगर आप देखेंगे सॉल्यूट अमाउंट विल बी मोर एंड सॉल्वेंट विल बी लेस. और उस कंडीशन में क्या है, सॉल्यूट विल बी लेस एंड सॉल्वेंट विल बी मोर. एक जनरल आइडिया हम दे रहे हैं, बुक में इस तरह से लिखा नहीं होता, जस्ट टू एक्सप्लेन यू so that you can understand. A solution in which the amount of solute is relatively large comparison to the solvent part, that solution is known as concentrated. अब तुम्हें समझ में आ गया ए और बी में क्या हुआ. ए आपका पीछे क्या हुआ, एक डाइल्यूट सोल्यूशन रहा, एंड बी आपका क्या हो गया, concentrated solution. I think now you are quite clear with these words, what is a dilute solution, what is a concentrated solution. Now we talk about saturated solutions. I am just dealing with the topics which are in your reduced syllabus. So saturated solution, a solution is said to be a saturated solution which cannot dissolve more solute at a given temperature. Now what is the case, suppose this is एक saturated solution हमारा कब बना होगा, इसमें अपने solute और solvent, ये तो तय है कि you have to use the solute and the solvent and this leads to give you a solution. ये तो ये क्लियर. अब इसमें क्या हुआ, सैचुरेटेड वर्ड लगा दोगे तो बेसिकली सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ वन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर सोल्यूट. मतलब आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें सपोज करो आपने 1 स्पून, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वी आर एडिंग NaCl. अब वाटर आपने लिया रखा है इसमें, अब ये पानी में ये NaCl इज़ बीन डिजॉल्व, अगेन यू ऐड 1 मोर स्पून, ऐसे टोटल करो 3 स्पून आपने NaCl के डाल दिए, ठीक है. अब एक कंडीशन आएगी, ये स्पून जो है वो अब आप और डालोगे इसमें NaCl में तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर. सो दैट पॉइंट, जो ये पॉइंट होगा, अब आप क्या करोगे, ये जब आप एक कंडीशन आएगी, अब ये वाटर जो है अपने अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व नहीं करेगा, वही पॉइंट ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड पॉइंट हो जाएगा. तो दैट सोल्यूशन, उस समय जो सोल्यूशन बन के आएगा, अब मतलब ऐसा हो सकता है कि इस नीचे यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूट पड़ा हुआ मिले, मतलब जितना घुलना था, इस पानी को घोलना था वो घोल चुका है, और एक्स्ट्रा वाला जो है वो नीचे पड़ा हुआ. अब तुम इसको फ़िल्टर कर लोगे, जो फ़िल्टर होकर सोल्यूशन आएगा, अब जो सोल्यूशन आएगा वो आपका कैसा सोल्यूशन होगा, दैट विल बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज्ड इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. आई एम अगेन टेल यू, सपोज करो आपने एक गिलास वाटर लिया, उस वाटर में आपने 1 स्पून NaCl डाला, आराम से घुल गया, फिर एक और डाला, फिर घुल गया, फिर डाला, एक कंडीशन आई, हो सकता है 3 स्पून के बाद अब तुम डालोगे जो 4th स्पून, वो डिज़ोल्व नहीं करेगा. आपने घोल लिया, जितना घुलना था घुल गया, जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो नीचे रह जाता है ना. अब आपने क्या करा, इसी सोल्यूशन को फ़िल्टर कर लिया, और जो सोल्यूशन ऊपर आया ना आपके पास, जो बिल्कुल फिल्टर्ड होके आया, दैट सोल्यूशन इज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन. डेफिनेशन सेज दैट अ सोल्यूशन विच कैनॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन. एंड नाउ दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन is very important because this thing you are doing in your day-to-day life also. I think you are making lemon water at your home and you are adding sugar to it. तो आप क्या करते हो, उसमें शुगर डालते हो तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन टाइम आता है वो नहीं डिज़ोल्व होता है ना. तो आप इसको छन्नी होती है, आप लोग का स्टर्नर होता है, यू कैन ईजिली रिमूव इट फ्रॉम द एक्स्ट्रा शुगर फ्रॉम दैट. So that is the point of saturated point. Now let's talk about unsaturated, then we see other things also. Now unsaturated solution is a solution which can dissolve more and more solute to your given solute. जैसे आपने कोई एक सपोज करो, आपने डिसाइड करा 100 ग्राम वाटर, और इन दैट यू ऐड अ सॉल्यूट, ये डिज़ोल्व हो गया, फिर आपने डाला डिज़ोल्व हुई, और डाला डिज़ोल्व हुई, ये कंटिन्यूशन में डिज़ोल्व होता रहता है, ठीक है. तो वो सोल्यूशन आपका क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. अब इसका सैचुरेशन पॉइंट आए ना, भी 10 चम्मच भी घुल गए आराम से, 20 चम्मच भी आपने चीनी के डाले तो उसमें डिज़ोल्व हो गया. तो दैट इज़ द सोल्यूशन इज़ योर सैचुरेटेड सोल्यूशन. आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फ्रॉम योर बुक. See, this must be there in your book, saturated and unsaturated. Learn it. Diagram is not required. Definition you can learn. Now next, one thing arises, question है how you can convert
अ सैचुरेटेड सोल्यूशन टू अ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास जो आपने अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था, जो आपका आ गया था, उसको आप अनसैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें, आपने घर में, मैंने फिर आई एम टेकिंग यू बैक टू योर होम, यू आर मेकिंग योर लेमन वाटर एंड यू आर एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। तो तुम क्या करते हो, उसमें पानी डाल देते हो, उस पानी में आपने क्या करा, शुगर डाल दिया, नमक डाल दिया, है ना, दोनों चीज़ें डाल के आराम से घोलते हो और इट डिज़ोल्विंग इट। देन व्हाट हैपन, एक टाइम आता है व्हेन दीज टू थिंग्स आर नॉट डिज़ोल्विंग इट, तो आप इसमें क्या करते हो, या तो उसमें पानी बढ़ा देते हो, दो कंडीशन होती है, या तो उसमें आप वाटर बढ़ा देते हो, है ना, मम्मी कहती है बेटा वाटर बढ़ा दो, और समटाइम्स यू आर एडिंग, आइदर यू आर एडिंग द वाटर और यू आर हीटिंग इट, और आप क्या कर देते हो, हीटिंग कर देते हो। ना होता नहीं है, कभी आपने देखा ठंडे पानी में आप शरबत बनाते हैं, यू आर एडिंग शुगर टू इट एंड इट इज़ नॉट डिज़ोल्विंग इन द कोल्ड वाटर, लेकिन वही पानी आप गर्म ले लें, गुनगुना ले लें, तो जल्दी डिज़ोल्व होता है। तो आपने बेसिकली क्या करा, टू थिंग्स यू हैव डन, आइदर you heat that saturated solution, तो it will convert itself to a unsaturated solution, और क्या करिए आप उसी सोल्यूशन में और पानी डाल दीजिए, ये दो कंडीशंस हैं। तो दीज टू कंडीशंस आर देयर। आप जब हीटिंग करोगे तो थोड़ा ध्यान देना, हाई टेम्परेचर रखना, तभी सॉल्यूट जो है ईजिली डिज़ोल्व होता है ना। ठंडे दूध में कभी चीनी तुमने घोलने की कोशिश करी, और ये गर्म दूध में अगर आपने शुगर घोली होगी, तो आई थिंक व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिज़ोल्व द शुगर इन हॉट मिल्क और water, it is very smoothly and easily it is the sugar is being dissolved in that. So I think this is clear to you how you can convert a saturated solution to an unsaturated solution. Now super saturated solution, it is a solution which can you can say hold or contain more solute at a given temperature than saturated solution। देखो saturated solution जितना भी solute hold करता है, ठीक है, द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो सुपर सैचुरेटेड होता है वो उससे ज़्यादा सॉल्यूट होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। नाउ हाउ यू आर प्रिपेयरिंग अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने क्या करा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो जो आपने बना दिया, आपको तो बनाना आता है ना, कि आपने एक पानी लिया, उसके अंदर आपने सॉल्यूट डालना शुरू करा और उसे घोलना शुरू करा। एक टाइम आएगा जब ये सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, नीचे रह जाएगा। उसके बाद आपने क्या करा था, फ़िल्टर करा, और सोल्यूशन आपके पास जो आया वो आपके पास दैट वाज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब नाउ व्हाट यू आर एडिंग डूइंग इट, यू आर हीटिंग दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपने इसको क्या करा, हीट कर दिया। जब आपने इसको हीट करा तो अब इसमें जगह खाली हो जाएगी। अब आप इसमें जब आप और सॉल्यूट डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने अंदर सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व करता जाएगा। ठीक है, इट विल डिज़ोल्व। आपने बॉइलिंग इसको बनाया, सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन बॉइलिंग वाटर, तो आपने क्या करा, ये इसको और डालोगे सॉल्यूट डिज़ोल्व कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये अब एक हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, आप कूल कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए से कूल कर दीजिए। तो क्या होगा, जब ये कूल कंडीशन होगा तो जो एक्स्ट्रा आपके सॉल्यूट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे ठंडे होके। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हॉट सोल्यूशन देयरफॉर कंटेन मोर सॉल्यूट डिसॉल्वेंट, और जो एक्स्ट्रा वाले होंगे वो आपके बाहर निकल आएंगे। और नीचे जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, दिस विल बी योर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें भी आपके पास एक्स्ट्रा ये नहीं होंगे, ये मत सोचना कि सारे के सारे एक्स्ट्रा सॉल्यूट बाहर आ गए, इसमें भी आपके पास एक्स्ट्रा सॉल्यूट्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल Na2SO4 डॉट वाटर, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपका सोडियम सल्फेट का। तो इट इज़ पॉसिबल टू कूल अ सैचुरेशन विदाउट एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइज। मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसको आप ठंडा करते हो तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान दे के चलनी है, एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जैसे आपका एक सॉल्वेंट है, उसमें आप क्या डाल रहे हो, सॉल्यूट डाल रहे हो, तो इस सॉल्यूट की क्या एबिलिटी होगी कि इस सॉल्वेंट पे डिसॉल्व। भाई कुछ सॉल्यूट होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते, है ना, देयर आर सर्टेन सॉल्यूट्स।
So that is your solubility. Basically this thing happens in a as a uniform residue. Actually होता क्या है ना, जब एक सॉल्वेंट में easily डिज़ोल्व हो जाता है तो वो एक होमोजीनियस, दिस यू हैव लर्न, होमोजीनियस सोल्यूशन बना देता है. मतलब यूनिफॉर्मिटी होती है, ये इसमें पता नहीं चलता सॉल्यूट का है और वो सॉल्वेंट का. जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो सॉल्ट विच यू आर यूजिंग एट योर होम एंड वाटर, जब आप इन दोनों को डिज़ोल्व करते हैं तो होमोजीनियस सोल्यूशन बनता है, जो कि आपको पता नहीं चलता है सॉल्ट कहाँ है और वाटर कहाँ है, मतलब एक सा लगता है ना. बट दिस टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट इन अ फिक्स्ड. ये कंडीशन कब होती है ऐसी यूनिफॉर्मिटी सॉलिबिलिटी की? पहली चीज़ जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, द सॉल्वेंट इज़ फिक्स्ड. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा फिक्स्ड रखना चाहिए. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ फिक्स्ड, जो हमेशा हम लोग लेते हैं 100 ग्राम्स. एंड सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट दिस थिंग हैपन्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप किसी भी टेम्परेचर में ये कहानी कर रहे हैं सॉलिबिलिटी हो जाए. भाई नमक को आप ठंडे पानी में बहुत उसमें घोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं डिज़ोल्व होगा. ठीक है, तो दैट इज़ योर केस ऑफ योर सॉलिबिलिटी. दीज 2 पॉइंट्स यू हैव टू, पैरामीटर्स you have to fix up, then only you will get the solubility of a particular solute in a solvent. Now this is the definition of the solubility of the solute in the solvent. At a particular temperature, its maximum amount of solute in grams that will saturate 100 grams of solvent at that temperature. मतलब आपने solvent फिक्स कर लिया, 100 ग्राम्स ले लिया, टेम्परेचर आपका है फिक्स है, सॉल्यूट आपका फिक्स है, आपने x ग्राम लिया रखा है. अब उसमें देखना है कि इस 100 ग्राम में कितने x ग्राम सॉल्यूट जो हैं वो डिज़ोल्व हो पाएंगे. और बस उसको आप स्टर करते रहिए स्टरर से, यू विल गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ये चीज़ होती है सॉल्युबिलिटी. फॉर्मूलेज एंड ऑल दैट डेरिवेशन इज़ नॉट देयर, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट. ना चिल्ड्रन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी तक जितना तुमने पढ़ा है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट करा था, दैट वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट और इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एक रीजनिंग का क्वेश्चन वो है. एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन से देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन पूछ लें तो पूछ लें, बट ये दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यूनिवर्सल सॉल्वेंट वन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. दैट व्हाट इज़ द इफेक्ट. अब बेसिकली क्या था, एक ग्राफ प्लॉट करा गया था, लेकिन हमें ग्राफ वगैरह नहीं देखना है, हमें वो भी नहीं देखना है, फिर भी हम बता देते हैं. जो ग्राफ प्लॉट करा गया था दैट वाज योर सॉल्युबिलिटी ग्राफ और कर्व. इसमें बेसिकली देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स दैट आर फिक्स्ड which you have to see. I'll show you the graph. This is the graph that was plotted between solubility and the temperature, and you see there are different solutes. They are showing different ways of graph. जैसे ये ग्राफ देखो, यहाँ पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये कंडीशन है आपकी KClO3 की, हाउ इट द ग्राफ इज बिन है. सबसे शार्प ग्राफ अगर आप देखते हैं जो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी आ रही है, आई थिंक दिस थिंग, यहाँ देखिए KNO पोटेशियम नाइट्रेट की दी रखी, सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है इसकी. मतलब वाटर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट की इंक्रीज़ होती जाएगी. तो देखो सबका अलग अलग, आप ये नहीं कह सकते हो कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी. वैसे ये डेड श्योर होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है, बट स्टिल there are cases where you will see that it is slightly increase or decreases also there. Let's focus on it. If you see this graph, पोटेशियम नाइट्रेट देखो, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो ग्राफ कितना ऊंचा बढ़ता जा रहा है, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती जा रही है. इसमें और एग्जांपल्स भी हैं, देखो दीज एग्जांपल्स आर ऑल्सो देयर. वैसे तो ये है, लेकिन अदर एग्जांपल्स ऑल्सो यू हैव टू फोकस ऑन इट. नाउ देखो स्लाइटली इंक्रीज़ है, जैसे NaCl है, ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे इनकी टेम्परेचर आप राइज करते हो तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, बहुत धीमे धीमे इंक्रीज़ करता है. ठीक है, अब देखो कैल्शियम सल्फेट में कह रही थी ना, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है. कैल्शियम सल्फेट देखो इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, वहाँ पे क्या है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आता है. सोडियम सल्फेट देखो सॉल्युबिलिटी एक शार्प ब्रेक आएगा. अब यहाँ देखो ग्राफ में सोडियम इसमें पहले इंक्रीज़ दिखा रहा, फिर एक ब्रेक आएगा, शार्प ब्रेक, और फिर वो नीचे गिरने लग जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है, देखो ये बेसिकली यहाँ पे अगर अब तुम देखोगे कि जैसे जैसे ये बढ़ती है और नीचे ग्राफ बिल्कुल नीचे घटता जा रहा है इसका, है ना. तो पॉइंट यह शार्प ब्रेक इसका जो है 36 डिग्री पे आता है, यहाँ पे इधर की तरफ. अभी बुक्स के ग्राफ है, लेकिन बेसिकली 36 डिग्री पे ब्रेक आता है. एक्चुअली बिलो इसमें हाइड्रस होता है, इट इज़ हाइड्रस बिलो 36. और हाइड्रस मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ये होते हैं. और जैसे ही 36 से ऊपर जाओगे आप, या 36 से ही चालू हो जाओगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं और सोडियम सल्फेट मिलता है. समझ रहे हो मेरी बात. फॉर एग्जांपल दिस थिंग,
दिस इज़ द केस योर सोडियम सल्फेट, ये हाइड्रेटेड है। तो जब ये 36 से नीचे होगा यानी 35 डिग्री तक होगा तब तक ये आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन जैसे ये 36 डिग्री या उससे ऊपर आप टेम्परेचर ले जाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और आपके पास सोडियम सल्फेट मिलता है। ये कैसा सॉल्ट है? एनहाइड्रस। ये हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप यही देखो। एनहाइड्रस है एंड दिस इज़ हाइड्रस। हाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनहाइड्रस होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। देखो पानी इवेपोरेट हो गया ना, तो इसीलिए ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। ऐसे ही देखो KNO3 एक इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि ये हाईएस्ट सॉलिबिलिटी होती है इसकी, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर कैल्शियम सल्फेट है, ये अच्छा है। टेम्परेचर राइज करोगे, यहाँ हाईएस्ट सॉलिबिलिटी क्या है? मैंने टेम्परेचर, इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्या होगा? टेम्परेचर जब आप इंक्रीज़ करोगे तो इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। ये 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत जो कह सकते हैं ना डिफरेंट वे से शो करते हैं। सो यू विल नॉट इग्नोर दीज थिंग्स। ठीक है, सॉलिबिलिटीज़ ऑफ वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट सॉलिबिलिटी of solids is independent of change in pressure। मीन्स इफ़ यू आर चेंजिंग, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हम टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज़ कर रहे हैं और प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं तो क्या सॉलिबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा? तो कोई नहीं, जो है वो है। मीन्स टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, सॉलिबिलिटी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज देर इज़ दिस इज़ द सॉलिबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर आप इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर का मतलब हो गया इंक्रीज़ हो प्रेशर चाहे डिक्रीज़ हो, सॉलिबिलिटी पे कोई असर नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कभी आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन ये लोग रख दें कि व्हाट हैपेंड व्हेन द प्रेशर इज़ हाई एंड टेम्परेचर इज़ हाई, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो जो है वो है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ करेगी वो करेगी, ये नहीं प्रेशर की वजह से इंक्रीज़ हो जाए। Are you getting my point? So this is an important portion. Please focus on it and learn it and discuss other things on the other videos.